Hello children, let us continue with the how do organisms reproduce. So last time we have done parts of the flower, the structure of flower. So sexual reproduction, that is a mode of multiplication in which young ones are formed due to process of gamete formation. So we have discussed that during the sexual reproduction, gametes or germ cells, they are formed, and these germ cells, they are formed by a cell division, meiosis, because due to this cell division, what happened, there is chromosome number or DNA, it becomes half. Then these gametes, they fuse to form a new organism. A flower, that is a reproductive unit of plant. So last time we have discussed parts of the flower: sepals, petals, stamens and stigma. Pistil, that is a female reproductive part of the flower, and stamen, that is a male reproductive part. Pistil contains स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स होते हैं. एंड स्टेमन्स जो हैं, दैट कंटेन्स फिलामेंट और एंथर, 2 पार्ट. एंड विद इन एंथर देयर आर प्रेजेंट पॉलेंस. So these are the parts that we have discussed yesterday. This is a green part, they are the sepals, और ये colorful part जो होता है, that makes the flower attractive and beautiful for pollinators. These are the petal, and this is the female reproductive part, 3 part. टॉपमोस्ट स्टिग्मा और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल और बेसल स्वोलन पार्ट जो आपने देखा था, दैट इज द ओवरी. इनसाइड द ओवरी देयर आर प्रेजेंट ओव्यूल्स और एग सेल. हियर दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये एक स्टेमन है ये. सो दिस इज द फिलामेंट पार्ट, और ये येलो वन, दैट इज द एंथर पार्ट. इनसाइड द एंथर देयर आर प्रेजेंट pollen grains. Inside the pollen grains, male gamete is produced, and the stalk of the flower, that is known as the receptacle. Pollination is transfer of pollen grains from anther to the stigma. It is called pollination. So here you see, here there are the male gametes or pollen grains are there. Pollen grains, they are transferred from this part to this part, stigma. और जरूरी नहीं ये same flower के, और it is transferred from pollen grains in from the anther of a flower to stigma of the another flower. तो ये जो है ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स का यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन इज डन बाय डिफरेंट मीन्स. जैसे मोस्टली हम देखते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन, एंटीमोफिली, दैट इज अ टर्म यूज्ड, लेकिन ज़्यादातर इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं. आपने देखा फ्लावर्स के पास बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, तो दे टेक नेक्टर, जूस फ्रॉम द फ्लावर, एंड इन रिटर्न तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, एंड व्हेन दे सिट ऑन अनदर फ्लावर तो वहाँ पे जो है वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो गिर जाते हैं. इस तरह से दे हेल्प इन पॉलिनेशन. Pollination, it is of 2 types, self-pollination and cross-pollination. Transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower, that is the self-pollination. And transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. प्लांट एक ही है, लेकिन ऊपर वाले फूल से नीचे वाले फूल में गिरते हैं, यानी कि ए डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज भी सेम होनी चाहिए. देन दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, ऐसा नहीं है अगर रोज प्लांट के पॉलन ग्रेन्स हैं तो वो रोज फ्लावर के स्टिग्मा पे ही होंगे, नॉट ऑन द मैंगो फ्लावर. इसी तरह एप्पल के पॉलन ग्रेन्स दे जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द एप्पल फ्लावर, नॉट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द मैंगो. तो इस तरह से अगर राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स फॉल करते हैं, देन ओनली दे जर्मिनेट. राइट टाइप मीन्स सेम स्पीसीज के. देन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है. pollen grains, they are deposited on the stigma
pollen grains जर्मिनेट, वहाँ पे वो जर्मिनेट करते हैं, उनके अंदर से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। साइमल्टेनियसली पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस जो है दैट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई और 2 मेल गैमीट, एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। पॉलन ट्यूब carrying 2 male gametes penetrate through the style, reaches the ovary and enter into the embryo sac through the micropyle. So यहाँ पे देखो ये pollen grain स्टिग्मा के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे सिर्फ हमने ओवरी पोर्शन दिखाया है, फ्लावर पूरा नहीं दिखाया। यहाँ ये जर्मिनेट कर गया, जब ये जर्मिनेट कर गया इसको हम कहते हैं pollen tube। pollen tube इसके अंदर से चली जाती है, ये स्टाइल के अंदर से, फिर ओवरी में एंटर कर जाती है। ओवरी में एंटर करने के बाद अब ये अंदर इसके ओव्यूल एम्ब्रियो सैक के पास चली जाती है। हियर देयर इज प्रेजेंट एग सेल और ये पॉलन ट्यूब में क्या होता है, मेल न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे ये फ्यूज कर जाते हैं, मतलब यूनियन हो जाता है एंड देन दे फॉर्म द जाइगोट। सो दिस इज व्हाट इज पॉलिनेशन। अब एंजियोस्पर्म का एक टिपिकल फीचर है, वो सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है क्योंकि यहाँ पे 2 मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। सेकेंड मेल गैमीट, जो दूसरा मेल गैमीट होता है, दैट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है विच आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार यहाँ पे फ्यूजन हुई, एक बार यहाँ पे फ्यूजन हुई, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूजन के बाद बना जाइगोट जिसने नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। ये वाली फ्यूजन के बाद बना एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, दैट गिव्स फूड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जाइगोट से नया प्लांट निकलता है, तो शुरू में तो प्लांट के पास लीव्स नहीं होते हैं, तो उसको फूड कहाँ से मिलता है, ये एंडोस्पर्म से। सो एंडोस्पर्म दैट प्रोवाइड्स फूड। आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ चेंजेस होती हैं। जब मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग, है ना, टू फॉर्म जाइगोट, इसको हम कहते हैं सिनगैमी। इट इज सिनगैमी, SYN, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इट इज SYN, सिनगैमी। सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड। 3 बन जाते हैं ना, 3 फ्यूज हो गए, N, यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमीट, और ये बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को मिला के सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट चेंजेस इनटू द एम्ब्रियो, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट चेंजेस इनटू द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स पेटल्स फॉल ऑफ, फूल के सेपल पेटल झड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब फूल लगा होता है उसके बाद वो सिर्फ ओवरी रह जाती है, सेपल पेटल सब झड़ जाते हैं, और वो जो ओवरी है दैट चेंजेस इनटू द फ्रूट, और जो उसके अंदर के ओव्यूल्स होते हैं दैट चेंजेस इनटू द सीड्स। तो एक लेमैन के लिए फ्रूट क्या होता है, समथिंग स्वीट, फ्रूट, जूसी सब्सटेंस, लेकिन साइंटिफिकली व्हाट इज अ फ्रूट, इट इज अ राइपन्ड ओवरी। व्हाट इज अ सीड, इट इज अ राइपन्ड ओव्यूल, ठीक है। सो नाउ आई विल शो इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज अ वेरी गुड डायग्राम इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, ये इसको हम देखते हैं। Here you see in the सो यहाँ पे बहुत सारा क्लियर बताया, और ये डायग्राम आपने बनाना है नोटबुक्स में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा, ये देखो ये स्टिग्मा बहुत अच्छे से पॉलन ग्रेन दिखाया। पॉलन ग्रेन के बाहर ये थिक वॉल मेम्ब्रेन होती है, सो दैट इट कैन टॉलरेट वेरी हार्डी कंडीशन, ये हमेशा सर्वाइव कर जाता है। फिर ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन, इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आया, इट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा। हियर if it is of right type, then it germinates and it is
If it is of wrong type, then it is rejected by the stigma. तो ये पड़े रहेंगे बहुत सारे पॉलन ग्रेन, सिर्फ अगर इस स्पीसीज का ही स्टिग्मा है तभी वो जर्मिनेट करेगा। अब जर्मिनेट करेगा तो इसके अंदर से पॉलन ट्यूब बाहर आएगी। पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट, इसके अंदर मेल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, ये पेनिट्रेट करेगी थ्रू द स्टाइल, स्टाइल के बाद ये ओवरी में आ गई, ओवरी से ये नीचे यहाँ से एंटर कर जाती है, यहाँ पे फीमेल गैमीट एग सेल इज प्रेजेंट। तो एक मेल गैमीट यहाँ फ्यूज हो जाता है, दूसरा मेल गैमीट, ये सेंटर में 2 न्यूक्लियाई हैं, इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इनके साथ फ्यूज होता है एंड दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इस वाली फ्यूजन को हम कहते हैं सिनगैमी, दोनों को मिला के हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो जाइगोट होता है इट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो, और ओवरी, ये पूरी ओवरी जो है इट चेंजेस इनटू द फ्रूट, और ये जो ओव्यूल है ये पूरा ओव्यूल ये सीड बन जाता है, और ये अंदर जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर का एम्ब्रियो, अब कभी भी सीड खोलो, मटर के खोलो, बीन्स के भिगो के खोलो, तो इसमें से छोटा सा अंकुर निकलता है ना, दैट इज द एम्ब्रियो। सो नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन लेसन में इसको देखेंगे, ये एम्ब्रियो स्ट्रक्चर, सीड का स्ट्रक्चर मैं आपको उसमें दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सिर्फ डायग्राम ही दिखा सकती हूँ। सो नेक्स्ट आपकी जब भी ऑनलाइन क्लास होगी on next Friday, then we will do this structure of the seed. So यहाँ पे देखो मैच्योर सीड ये है, ठीक है, ये मैच्योर सीड है, और दिस इज द कॉटिलिडन। ये कॉटिलिडन जो ये कोई भी सीड आप देखो, ये चने का बनाया हुआ है, चने का ऐसे खोलोगे ऐसे नजर आएगा, मटर का खोलेंगे वो भी हमें ऐसे नजर आएगा, इसी तरह बीन्स का हम खोलेंगे वो भी हमें ऐसे नजर आएगा। कैसे खोलेंगे? हम भिगो के, ठीक है। सो दिस पोर्शन जो हम खाते हैं दैट इज द कॉटिलिडन, इट इज अ रिजर्व फूड। ये बीच में छोटा सा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मीन्स फ्यूचर प्लांट। इसकी जो टिप है, ऊपर वाली टिप इसको हम कहते हैं प्लिम्यूल, दैट फॉर्म द फ्यूचर शूट, और नीचे वाली टिप को हम कहते हैं फ्यूचर रूट। सो दैट फॉर्म्स द एम्ब्रियो। तो इसको नेक्स्ट टाइम हम इसको डिटेल में ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम वी विल आल्सो टेक रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स।